Hello students. If in the last class we discussed about the fundamental concepts of economics. We studied about what is economics as per Kautilya. We studied what is economics as per Adam Smith, Marshall, Robbins, etc. So I hope all of you are clear with all the concepts. Now today we'll start with difference between economic activity and non-economic activity. Please watch this video you can say properly and note down the points in your notebook. These points and this question will be very important for your examination. Every time, you can say in first examination, second examination, third examination, difference between economic activity and non-economic activity will be asked in your 2 markers or 3 markers. वो repeat होता ही है. ठीक है, तो this will be very important question. So please pay attention and write the answer in your notebook. That will be your homework for today. Okay. Okay students, so let us start with our topic today. Our topic for today will be difference between economic activity and non-economic activity. ये आज का अपना टॉपिक है. Okay, so let us start with it. First point of difference will be of concept. Now before we continue, I want all of you to take out your notebooks and keep writing with me. अगर आपको लगे कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ तो आप पॉज मुझे करके just pause me और पहले लिख लो. ठीक है, तो you will get the answer and this answer is common for your. ये क्वेश्चन जो है ना, ये कॉमन क्वेश्चन है किसके लिए? BO एंड इकोनॉमिक्स. अब BO क्या है आपका? OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. तो OCM में भी क्वेश्चन है और इको में भी क्वेश्चन है. सो अगर ये क्वेश्चन आप लर्न कर लेते हो तो यू कैन राइट द सेम आंसर इन बोथ द सब्जेक्ट्स. दोनों ही सब्जेक्ट में आप एक ही आंसर एक ही कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो. ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो अगर ये आप क्वेश्चन का तैयार कर लेते हो, आपका इको और OCM का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा. लेट अस मूव फर्दर. आई होप सबने नोटबुक ले ली है. नहीं ली है तो एक बार पॉज करके नोटबुक लेके और उसके 3 कॉलम्स बनाओगे. 3 कॉलम कैसे? फर्स्ट कॉलम विल बी योर पॉइंट ऑफ डिफरेंस. फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा आपका? पॉइंट ऑफ डिफरेंस का. ERENCE, पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सेकेंड कॉलम आपका जो होगा दैट विल बी योर इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड कॉलम किसका होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड थर्ड कॉलम विल बी ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर 3 डिफरेंट यू कैन से कॉलम्स विच यू हैव टू मेक. टेक्स्ट बुक नोटबुक में बनाना है 3 कॉलम्स. पहले पॉज करके पहले आप लोग कॉलम्स बना लीजिए, देन मूव फर्दर. मैं कॉलम बताऊंगी. दिस विल बी योर फर्स्ट कॉलम. आई विल डिफाइन दिस एज अ फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले आप लिखोगे कॉन्सेप्ट. फर्स्ट कॉलम जो हमने बनाया ना उसमें लिखोगे कॉन्सेप्ट. देन इन कॉन्सेप्ट में अब फर्स्ट कॉलम में आपने लिख दिया. अब सेकेंड कॉलम में लिखो. मैं पूरा कॉलम नहीं बनाया क्योंकि मेरी जगह यहाँ पे नहीं है, आप समझ जाओ. ठीक है, सेकेंड कॉलम में कॉन्सेप्ट में लिखोगे दैट वाज सेकेंड कॉलम किसका था आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो हम लिखेंगे एनी एक्टिविटी डन विद द aim of getting monetary gain or anything which can be measured. मैं बोर्ड रब कर देती हूँ. which can be measured
in terms of money is economic activity. Is economic activity. Clear with this? First concept, concept के column में, economic activity के column में you will write this. Now we'll move on to the third column. Third column हमारा कौन सा था? Non-economic activity. It was non-economic activity. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लिखेंगे, मैं इसको पहले से रब कर देती हूँ जिससे मुझे ज़्यादा बोर्ड मिल जाए. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे हम लोग एनी एक्टिविटी विच इज डन with the aim of getting love, affection, respect in the society or family, or to fulfill our, I'll rub off, fulfill our social, moral or family responsibility is known as economic it is known as non-economic activity. Clear? सबने लिख लिया? Okay. So what do you understand from this first point? हम लोग ये बोल सकते हैं, when you work for money, when we work for money or anything which is equivalent to money, ये लिखना नहीं है, पर समझाने के लिए बोल रही हूँ. When you work for money or anything equivalent to money, that is economic activity. Or when you work for love, affection, social status, ये A है, responsibility towards nation, then it is non-economic activity. Okay, this is all about your first point of difference, कि जब हम पैसे के लिए काम करते हैं, that is economic activity. When you work for love, affection and respect in the society, that is your non-economic activity. Clear? We'll move on to the second point. So for the second point, in the first column, that is point of difference, उसमें लिखो example. ठीक है, तो example में इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप लिखोगे, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. अभी मेरा ही ले लो, टीचर टीचिंग इन स्कूल. अब ये सिचुएशन में हम बोलेंगे टीचर टीचिंग इन स्कूल और ऑनलाइन सेशन. मैं अभी कैसे पढ़ा रही हूँ आपको? ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ. क्यों पढ़ा रही हूँ? बिकॉज आई एम पेड फॉर बीइंग योर टीचर. मुझे आपको पढ़ाने के लिए राजस्थान सेवा समिति संचालित RHHS राजस्थान हिंदी हाई स्कूल से आई एम गेटिंग सैलरी. सो फॉर दैट आई एम टीचिंग यू right now. So teacher teaching in a school. For what teacher would teach? For salary. Salary क्या है? पैसा. That is money. So I am working for money. So I am doing economic activity. Non-economic activity में आप लिख सकते हो same teacher. Teaching his
और हर चाइल्ड। मेरी बेटी अभी 10th स्टैंडर्ड में है, एक छोटी वाली बेटी है, शी इज़ इन 3rd स्टैंडर्ड। तो दोनों बच्चों को मैं जब पढ़ाती हूँ तो मुझे घर से कोई सैलरी मिलती नहीं है। So when the teacher teaches in the school, that is economic activity. But the same teacher when she teaches in the at her child, या फिर mother teaches her child, अगर टीचर नहीं है बट आपकी मम्मी आपको पढ़ाती है, पापा पढ़ाते हैं, बड़ा भाई पढ़ाते हैं, तो वो ऐसा बोलते ला सैलरी दो, फीस दे, मैंने देखो पढ़ाया, नहीं बोलते ना। They do it for what? They do it for the love and affection or fulfill their social responsibility. ठीक है? So that is your example for you can say second point of difference of economic activity and non-economic. इसमें आप कोई भी example लिख सकते हो, teacher teaching in a school, doctor you can say treating his patient in his clinic or in hospital, same doctor, वही doctor जब charitable trust के लिए काम करेगा तो he is doing non-economic activity, लेकिन अपने ऑफिस क्लिनिक पे जो करेगा काम करेगा that will be an economic activity. Clear with this? Okay. Third point, पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आप लिखो रिवॉर्ड, इट इज रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड में इन इकोनॉमिक एक्टिविटी राइट डाउन रिवॉर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ, या आप खुद लिख लो, रिवॉर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, प्रॉफिट, फीस, कमीशन, स्टाइपेंड एक्सेट्रा। ठीक है, रेम्यूनरेशन आपको प्रॉफिट में, फीस में, कमीशन में, इस तरह के उसमें आपको रेम्यूनरेशन यू विल गेट इट। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है दैट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी वी गेट रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, फीस, कमीशन, स्टाइपेंड एक्सेट्रा। हाफ लिखोगे तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। ठीक है, हियर इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यू गेट, हमें रिवॉर्ड मिलता है, हाँ मिलता है ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी मिलता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी ये रिवॉर्ड मिलता है। कैसे मिलता है? इन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन, लाइकिंग, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मतलब आप काम करो पर आपको कोई वो नहीं मिलेगा, जैसे मम्मी है ना, सफाई करती है, सब काम करती है, आप लोग सब बोलते हो क्यों करते हो मम्मी, क्या ज़रूरत है, बट शी फील सेटिस्फाइड दैट आई डिड समथिंग गुड फॉर द फैमिली। खाना भी अच्छा बनाती है तो आप लोग उसको या तो उसको रिस्पेक्ट करोगे, लव करोगे, अफेक्शन दोगे, लाइकिंग दोगे, कुछ नहीं होगे तो उसको खुद को ऐसा होगा चलो आई डिड गुड समथिंग गुड एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो एक सेल्फ अप्रेजल वाली फीलिंग आती है। So that is a reward you get it in your economic activity, and that you always should have. That thing you should always have, because one of my professor when I was doing MEd, he told कि at the end of the day अगर कोई आपको ना बोले कि you did a good job, अपने आप को खुद टैप करो कि भाई yes you did a good job. That will help you to move on in life, and it works for me. जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसा यार मैंने आई डिड सो गुड, मैंने स्कूल में इतना अच्छा किया या फिर मैंने घर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट नो वन इज रिकॉग्नाइजिंग, सो आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ, आई लुक इन द मिरर, आई टैप माई सेल्फ, येस मोना शर्मा यू डिड अ गुड जॉब, ओके, सो दैट वर्क्स. So this is what you get in as a reward. This is your third point of difference, if I am not wrong. Yes, it was the third point. Now we'll move on to the fourth point. The fourth point would be exchange. Let me rub it off. Fourth जगह, नहीं तो सारी जगह तो यही ले लेगा. Exchange. Fourth point of difference will be exchange. Now in exchange, again, I don't know why मेरा मोबाइल बार बार खुल रहा है. In exchange we will have, first of all, यहाँ पर क्या exchange होता है? Here, goods and services, आपको पूरा sentence लिखना है. Here, goods and services are exchanged for
money or goods and सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के और में क्या होता है, या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज के और में, यहाँ पे मैंने सर्विसेज लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज के और में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं या फिर मनी देते हैं। इसके और में गुड्स एंड सर्विसेज कब देते हैं हम लोग, वी आर मेकिंग यूज ऑफ द बार्टर सिस्टम। यू हर्ड अबाउट बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग एक जैसे आम लेके सेव दे दूँ, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। लेकिन जब आम लेके और मैं उसको पैसे दूँ, दैट विल बी अ मॉनिटर सिस्टम। तो यहाँ पर एक्सचेंज का इसमें होता है, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी। ठीक है, सो मेक अ स्टेटमेंट। यहाँ पे थोड़ा देखो गुचरम पुचरम हो गया है, पर आप एक स्टेटमेंट बना लेना। ओके, नाउ ऑन अदर साइड यू हैव हियर goods or services. I hope you know the difference between goods and services. goods वो होता है जो tangible होता है और services वो होती है जो intangible होती है। ठीक है, सो गुड्स अब tangible का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, intangible का मतलब होता है जो टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मार्केट में जाके और एक बुक लेके आती हूँ, दैट इज़ गुड्स। बट मैं जब मार्केट में जाके एक टीचर को हायर करती हूँ जो वो मुझे बुक समझाए, दैट इज़ सर्विस। राइट नाउ आई एम गिविंग यू सर्विस। सर्विस किस चीज़ की दे रही हूँ, ऑफ टीचिंग। मतलब गुड्स कैन बी मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ केजी, लीटर, मीटर। ठीक है, सर्विसेज कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ केजी, लीटर, मीटर। आप ऐसा नहीं बोलोगे आज मोना टीचर ने 1 किलो पढ़ाया या 500 ग्राम पढ़ाया, आज तो 250 ग्राम ही पढ़ाया। टीचर ने अच्छा पढ़ाया, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया समझ में आया, टीचर ने पढ़ाया नहीं समझ में आया, दैट वुड बी योर, यू कैन से, आउटकम फॉर सर्विसेज। गुड्स में क्या होगा, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। ठीक है, सो गुड्स एंड सर्विसेज, मैं इसको वो कर देती हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज आर exchanged without any expectation, without any expectation। ये TATION है। ठीक है, so this is your third point of so not third, it will be a fourth point of difference. Okay, let us move further. factors that affect, वो फिफ्थ पॉइंट आपका होगा, फैक्टर्स दैट अफेक्ट। उसमें आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस में इधर आएगा, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इट विल बी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमांड, सप्लाई, ट्रेंड्स, फैशन, एक्सेट्रा। ठीक है, these are the points which affects the, you can say, economic activity. Now on next side you will write down on factors that affect non-economic activity. It would be feelings. स्पेलिंग गलत है, feelings, it can, your feelings could be positive and negative, है ना। पॉजिटिव फीलिंग भी हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग भी होती है। मतलब फ्रेंड के लिए अगर पॉजिटिव फीलिंग है तो उसको नोटबुक हम दे देंगे, फ्रेंड के लिए नेगेटिव फीलिंग है तो नोटबुक देंगे, लेकिन जो भी लिखा होगा सब गलत गलत लिखा होगा, है ना। तो फीलिंग अच्छी होगी तो फोन करके बताएंगे कि होमवर्क करना है, फीलिंग अच्छी नहीं होगी तो बोलेंगे आज तक कुछ नहीं करवाया, पर आज तक तू आ जाना कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे दिन गया स्कूल में आए तो टीचर बोले होमवर्क नहीं किया, और फिर उसकी बैंड बचे, है ना। तो फीलिंग्स जो भी है, फीलिंग्स टूवर्ड्स फ्रेंड्स, फैमिली, रिलीजन, pleasure, है ना, feelings to attain pleasure you would say, etc.
affect नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एन ई ए का मतलब होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए लिखा है, तुम लोग को नहीं लिखना है, तुम लोगों को पूरा लिखना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, स्कोप। ठीक है, अब स्कोप में डिफरेंस में हम लोग लिखेंगे ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी साइड लिखो इट इट टेक्स प्लेस, या फिर दिस एक्टिविटी टेक्स प्लेस बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोफेशनल, client, etc. On the other side, that is non-economic activity, it takes between friends, family, relatives, social workers, or you can say I would add NGOs and nation। ठीक है, NGO और उनके बीच में होता है। ओके, सो I think I explained 6 points. Now if in the examination, if this question is asked for 2 marks, अगर ये question 2 marks के लिए पूछे तो you have to write how many points? 4 points. इनमें से कोई भी 4 points लिख दो, I will give you marks. If this question is asked in 3 marks, then you have to write how many points? 6, हाँ 6 points, because 1 point will fetch you half mark। ठीक है, 6 points। अब और अगर मैं इसको 5 मार्क्स में पूछूं तो यू हैव टू राइट हाउ मेनी पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स। अब आप बोलोगे मैम आपने तो मुझे 6 पॉइंट्स करवाए, यू गेव अस 6 पॉइंट्स, तो मैं 10 पॉइंट्स कैसे लिखूंगी? तो आपका होमवर्क है राइट 10 पॉइंट्स, 6 मैंने दिए हैं, 4 खुद फाइंड करो। 10 points of difference between economic activity and non-economic activity। समझ में आ गया? डिफरेंस बिटवीन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के 10 पॉइंट्स लिखने हैं। मैंने आपको दिए 6 पॉइंट्स, यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर लेक्चर। ऑल ऑफ यू stay home, stay safe। Okay।